السلام، نمستے، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انجم بانو. آپ سب کا سواگت کرتی ہوں پارو وائس میں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو ہے میں گاؤں میں جا رہی ہوں، مہیلاؤں سے مل رہی ہوں، ان کے پاسٹ، ان کے فیوچر کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہر ایک مہیلا ایک جیسی ہے یا پھر ہر ایک مہیلا کی تکلیفیں الگ الگ ہیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی تکلیف ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کسی کی پریشانی ایک جیسی نہیں ہوتی، پر بہت ایسی مہیلائیں ہیں جو ایک جیسی پریشانیوں سے جو ہے دقتوں سے جو ہے جھوجتی ہیں. اور آج جو میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ایک گرامین مہیلا ہے، اور اس سے بھی جو ایک بات ہے کہ ہم ان مہیلاؤں کا فیس اس لیے کور کرواتے ہیں تاکہ یہ ان کی سیفٹی ہے. تو اب جو ہے ہم اپنی مہیلا کی طرف جائیں گے اور ان سے باتیں کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور یہ اب کیسے جی رہی ہیں. نمستے. نمستے. کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا کرتے ہو؟ بس کچھ بھی نہیں. کہاں کے رہنے والی ہو؟ جھارکھنڈ کے رہنے والی. جھارکھنڈ کے کون سا گاؤں؟ ہنٹر. ہنٹر میں. تو آپ جھارکھنڈ کی رہنے والی ہو، آپ ہریانہ کیسے پہنچی؟ شادی کر لے جا کر کے یہاں سے. اچھا. شادی کر کے پھر لے وہاں سے. جی جی. تو وہاں نہیں ہوئی آپ کی جھارکھنڈ میں شادی؟ میری امی ابا نہیں تھے، بھائی تھا میرا چھوٹا تھا. جی جی. کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. جی. اس کر کے پھر ماما تھے مامی تھے، پھر اس نے ہریانہ میں کروا دیا شادی کے لیے. تو آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کی مرضی سے یا پھر کوئی رشتہ لے کے گیا تھا یا پھر آپ کو یہاں لے کر آئے تھے؟ نہیں، بس رشتہ لے کر گیا تھا یہاں سے. اچھا. پھر پسند کر کے پھر شادی کر لے تھے. کون لے کر گئی تھی؟ وہاں کھدری کی تھی، خالہ لگتی تھی. اچھا. وہ لے کر گئی تھی ساتھ میں، پھر اس نے پسند کر کے پھر لائے تھے شادی کر. آپ کی مرضی سے کروائی تھی آپ کی ہاں، شادی؟ میری من پسند سے. جی. ٹھیک ہے. تو آپ جب دیکھا کہ ہماری مہیلا نے بتایا کہ یہ جھارکھنڈ ہنٹر گنج کی رہنے والی ہے اور ان کی شادی جو ہے یہاں پہ کروایا گیا کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں تھے. آپ اکثر دیکھو کہ بہت ایسی عورتیں ہیں جو یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، وہ کسی نہ کسی پرابلم، کسی نہ کسی دقت کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہوئی ہے. جیسے کہ ہماری مہیلا نے بتایا کہ ان کے کوئی گیا اور وہ انہیں یہاں لے کر آیا، ان کی شادی کروائی گئی، اور مین پرابلم تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ دقت جو ہے سب کے ساتھ ہے. ہم جتنی بھی مہیلاؤں سے ملتے ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے آئے ہیں، وہ ہے منی پرابلم. جیسے کہ ہم ایک لیول ہوتا ہے، وہ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غریب گھر کی لڑکی اس کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کتنی دور چلی جاتی ہیں. یہ ہریانہ میں آئی ہوئی ہیں اور یہ اب ہم ان سے تھوڑا سا اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس کے بعد جب آپ یہاں آئی تو آپ کو کیا کیا دقت ہوا؟ بہت دقت ہے یہ سن کر. یہاں کا پہلا بھاشا نہیں سمجھ میں آیا، کوئی آدمی نہیں پسند آیا. ہر چیز میں سارے گھر کے کہے کراتے ہیں. جی یوں آیا، اس کی بھاشا نہیں سمجھ میں، اس کے کام نہیں سمجھ میں آتا. جی جی. سارے طرح کے تکلیف کرتے. 10 سال رہے ساتھ میں. ایک فیملی میں آپ لوگ 10 سال تک رہے؟ ہاں، ایک فیملی میں 10 سال رہے سب کے ساتھ. جی جی. اس کے بعد اس کے بعد پھر بھی لوگ کے سمجھ میں نہیں آئی. آپ نہیں سمجھ میں آتی تھی یا پھر وہ لوگ کو آپ سمجھ میں نہیں آتے تھے؟ بس وہی لوگ نہیں سمجھ میں آتے تھے. اچھا. بھاشا نہیں سمجھ میں آیا کرتے تھے ہم لوگ کے. جی جی. رنگ سارے جی الگ الگ تھے. جی جی. تو کیا دقت ہوتی تھی؟ دقت تو بس آدمی بھی غصہ کرے کراتا، ساس سسر بھی سارے کرے کراتے، دیور جیٹھ بھی. جی جی. بس پھر تھوڑی برداشت کر دے پھر خیر الگ ہوئے گی 10 سال بعد. جی 10 سال بعد الگ ہو. ہاں. جی. پھر اللہ نے کریا ٹھیک ہے. بس اس دن سے کچھ ٹھیک ہے. بس اتنا تو ٹھیک ہے نہیں، پھر بھی کچھ ٹھیک ہے. بچے آپ کے پاس؟ 4 بچے ہیں. 4 3 بچے. لڑکے 1 لڑکا. تو جب آپ اپنے بچے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ بس پڑھ رہے بال تو بچے چھوٹے ہیں. اسکول میں بھیجنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ نہیں، بس اب تو دقت کوئی نہیں ہے، لیکن تھی پہلے پریشانی سے کاغذ پتر میں ٹھیک ہو گئے تو. لیکن ایک کے بچے کے نہیں بال داخلہ کروایا. اچھا، اس کا کروایا نہیں ہے داخلہ. جی. تو دیکھا کہ ہماری مہیلا نے کیا کہا کہ جب یہاں پہ آئی تھی تو جیسے کہ ہر کسی کو پرابلم ہوتی ہے، ہماری مہیلا کو بھی پرابلم تھی، بہت زیادہ پرابلم تھی. انہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. لوگ
ये समझ में नहीं आती थी, कहते थे कि ये समझ में नहीं आती है, वापस भेज दो, पर फिर भी हमारी महिला ने 10 साल तक जो है उनके साथ एडजस्टमेंट की रही। पर अब जो ये अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ अलग रहती है। तो इसके ऊपर हम और भी अपनी महिला से जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम जाने को। तो आप खेत उत में जाती है काम करने के लिए? खेत अपना नहीं, अपना नहीं है, दूसरों का। दूसरों को। क्या क्या करती है आप खेत में जाके? गेहूँ काट लो, जीरी काट लो, बस तेरी मजदूरी करनी। जड़ी मजदूरी करा। बस 2 कमरे की जगह बस हमारे पास। जब आपने बताया पहले कि आप 10 साल बाद अलग हुई, हाँ। तो जब आप अलग हुई तो क्या हुआ था? बस सारी बार लड़ाई झगड़ा रहे कराते, सबके साथ मिलजुल कर नहीं रहे कराते। बस सारे बार लड़कन पर कोई बोलने लग जाता, खींचे कराते सारी बार। बस सारी बार बर्दाश्त भी नहीं होता इंसान। जी जी जी। फिर बस मन नहीं कह दिया बस इकट्ठे हमारे साथ में काम चल रहा तो अलग होंगे इनसे। जी जी। फिर वो तो मान भी नहीं रहा था घर वाला। आहो। फिर मैंने कह दिया बस मैं तो बस अलग ही रहूंगी, अपने बाल बच्चे ने लेकर के जाएंगी है मेरे पास। मेरे को कमाई जाएगा तो भी, नहीं कमाई जाएगा तो भी, मैं तो अपने बाल बच्चे ने अलग ही रखूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे बहुत परेशानी उठाए लेकिन फिर भी बस। तो अलग होने के बाद आपको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, एक चम्मच तेरे सेक के नहीं दिया, खाली कमरा भी नहीं दिया था, वो तो अपना बनाया था, थोड़ा जड़ मजदूरी करके फिर लगे रहे। जी। फिर उसके पीछे हमने बैंक में से लोन वान लेकर का फिर अपनी छोटी सी दुकान पर रखी, उसी से घर का खर्च चला, उसी से लड़कन बच्चे सरकारी स्कूल में नाम लिखा रखे बच्चे को। जी सारे जेरे पढ़ने के लिए। परेशानी तो सारी तरह की थी, हर चीज की थी, कोई बर्तन नहीं थे घर के। फिर थोड़े थोड़े करके सारे सामान खरीदे हमने। फिर सारा सामान घर के तो पता ही है सभी में कितने सामान होते। फिर बहुत दिक्कत है, बस वो कमाने वाला बेसी है अभी, उसके टांग में फर्क से है बेचारे की, एक टांग से बेचारा। जी जी। फिर उसके बाद फिर बस थोड़ा बहुत कहीं काम मिल जा कर ले बेचारा, ना तो बस घर ही है। जी जी। फिर कहाँ भेज जाएगी उसने? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ने तो देखा ही कि हमारी महिला ने क्या कहा, पर इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले मैं अपनी महिला से बात कर लूं। तो जब आपके हस्बैंड के पैर में प्रॉब्लम है, फिर भी आपके घर वालों ने उनके साथ आपकी शादी करवा दी? बस माँ बाप नहीं थे ना, बस मजबूरी थी, मामा मामी थे। जी जी। इसकी वजह से फिर करवानी पड़ेगी। बस मान तो मैं भी नहीं रहे थे, लेकिन बस फिर पैसे नहीं थे लेन देन के लिए, दहेज मंगाना, दहेज देने वास्ते पैसे नहीं थे, कहाँ से लेन दे। जी। इस करके फिर यूपी में करवाएगी, हरियाणा में। तो जब आप जैसे कि आपने बताया कि अलग होने के बाद आपको कुछ नहीं मिला, घर भी नहीं मिला, आपने खुद बनाया, लोन लेके जो है हमारी महिला ने लोन लेके दुकान किया और अब दुकान चला रही है। तो दुकान चलाने के टाइम में आपको दिक्कत होती है? दिक्कत तो पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। पैसे की दिक्कत? हाँ पैसे की बहुत दिक्कत है। छोटे मोटे दुकान में क्या ही करा, इतने तो बच्चे भी खा लेंगे। जी जी जी। हर तरह की बीमारी सिमारी दुख तकलीफ हर तरह की है, खाना खर्चे की भी, कपड़े लगते की भी, बहुत सी ऐसी चीज है, परेशानी आई है। बस आपके घर के भी आ जाते हैं? ना घर के तो है ही, कौन आने वाला, एक भैया तो कभी पूछता भी नहीं। पूछता नहीं है? शादी होगी आपके भाई की? शादी होगी, बाल बच्चे ना, कभी भी नहीं आया ना, पर कभी लेने भी नहीं आया ना, फोन करके जल्दी से पूछा कर, बात भी नहीं होती आप लोगों की ना? आप कभी अपने घर गई हो? ना, बस खासी देने गई। तो कितने साल? 16 साल है बस। आप गई ही नहीं हो 16 साल से? बस मतलब 16 साल तो आपकी शादी के भी हो गए होंगे। हाँ, 4 बच्चे हैं, आप गई ही नहीं हो उसके बाद? ना उसके बाद कोई आया है? ना कोई भी नहीं आया। आप देखो, ये जो हमने जितनी भी महिलाओं से बात की है, उन बातों में ये एक बात है कि ये 16 साल से अपने घर पे नहीं गई है, अपने घर वालों से नहीं मिली है, इनके घर वाले नहीं आते हैं, फोन नहीं करते। तो आप सोचो, एक ऐसी महिला जो परदेश में भी आई गई है, परदेश में रहती है अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ, पर उसकी खुद की फैमिली उसे नहीं पूछ रही है, ना आती है, ना जाती है, ना बुलाती है। तो इस ऐसी महिलाओं के लिए जो है ना कोई फैमिली होती है, ना कोई परिवार होता है, ना कोई अपने होते हैं। तो आपके और यहाँ कोई होगी, उससे भी नहीं मिलने जाती हो? बस उससे भी नहीं मिलने जाता है कोई आस पास में।
और कोई हो उधर की, जो आपके गांव की तरफ की, उधर की भी कोई नहीं है? ना कोई आस पास है ही नहीं है। और जो आपको लेकर आई थी वो तो मर गई थी। मर गई वो? कितने साल हो गए उसे मरे? उसमें थोड़े दिन बाद ही मर गई थी, 2 महीने बाद। 16 तो- साल है कि उसमें मरी नहीं, खाला नहीं। वो भी मर गई थी। अब मैंने सुना था कि आपकी एक बहन मिली थी आपको 16 साल बाद, आप जब आई थी। वो तो मेरे मामा की लड़की की ननद है। अच्छा, बस बहन के इस तरह 16 साल बाद ही मिले हैं। मिले थे आप उससे? हाँ, पता चला 16 साल बाद मिले उससे हम। जी। बस हम मिलकर बहुत खुशी से, ये इतने साल बाद मिले। जब आप उससे मिली तो खुशी हुई या फिर और भी कुछ महसूस हुआ आपको? मैं बस खुशी तो इतनी है कि बस अपनी बहन की तरह मिले। जी जी। रह कर गई थी वहाँ, फिर उसने भी बुलाया था हमने, फिर मैं भी गई थी वहाँ। उसके बाद मतलब आपका आना जाना हो गया? हाँ, उसने बुलाया था फोन करके। जी जी। हाँ जी, फिर गई थी मैं भी। बस उसके बाद तो फिर बहुत खुशी हुई, कितने साल बाद मिले। स्टेशन में से बिछड़ गए थे हम। स्टेशन में से बिछड़ गए थे मतलब? यहाँ आने का बस उतर गए थे हम। मैं तो खदरी उतर गई थी अपने खाला के यहाँ। जी जी। अरे बाग पता ही तो उसके बाद उसने फोन फान कभी करे ना पूछा न। मेरे पर नंबर ही नहीं था किसी का फोन फान करने में। उस बारे में तो मैंने पता ही नहीं। जैसे कि आपने कहा स्टेशन से बिछड़ गए थे, मतलब आप लोग घर से साथ चले थे? हाँ, घर से तो साथ ही चले थे, बस में वहाँ से साथ चले थे, ट्रेन में साथ है जमुनानगर। जी जी। वहाँ से आन का बिछड़ गए थे हम। वहाँ से आके बिछड़ गए थे? हाँ। मतलब 16 साल तक फिर मिले ही ना मिले ही नहीं, ना पता थे बस। जब मिली तो क्या हुआ? वो कहाँ मैं कहाँ, कुछ नहीं पता था। अच्छा। बस खुशी हुई उस दिन मिल करके बहुत। उसके बाद फिर मिलना आना जाना आप लोग? हाँ, उसके बाद तो फिर फोन करके बुलाए थे हमने, फिर आई थी वहाँ। फिर वो चली गई घर, 5-7 दिन हो गए उसने यहाँ से गई ना, फिर उसने बुलाया था फोन करके। फिर अब उसके साथ आना जाना है? हाँ, उसके साथ है आना जाना, बातचीत भी हो जाती है फोन पर। तो अब अच्छा लग रहा है कि जो खुद के जो घर वाले हैं वो नहीं आते जाते, पर एक बहन, जो बहन जैसी ही हम मान सकते हैं, वो 16 साल बाद इन्हें मिली और इन्हें मिलकर खुशी हुई। वो ये उनके घर आने जाने लगी है, इनके घर आने जाने लगी, तो अब लगता है कि हाँ एक फैमिली मिली है, एक परिवार मिला है, बिछड़ा हुआ फैमिली मिला। जी जी, खुशी की बात हुई है जी। आपके घर वाले के टांग में क्या है? पता नहीं, बस साधारण की चास हुई तो उसकी टांग से तो पूरी लाचार है बेचारा, मजदूरी नहीं कर सकता। करते क्या हो? दुकान पे बैठे थे? हाँ, दुकान पे बैठे हैं। तो ये जो हमें एक नई बात मिली, एक जैसे कि हमारी महिला ने बताया कि यूँ तो इनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनके हस्बैंड की टांग में प्रॉब्लम है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो दुकान पे बैठे रहते हैं। दुकान पे से भी जो हम कह दें कितनी लागत आती होगी। तो ये जो हमारी में हम कह सकते हैं कि जो बाहर से महिलाएं आई हुए हैं, उनका ऐसा नहीं है कि हर एक महिला की फैमिली नहीं आती, उनसे नहीं मिलती है या उनसे बातें नहीं करती, पर हाँ कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी फैमिली उन्हें नहीं पूछती है, नहीं आती है, नहीं जाती है। उन महिलाओं के लिए जो है हमें उनकी फैमिली बननी चाहिए, हमने उनसे मिलना चाहिए। और जैसे कि हमारी महिला ने बताया कि जब ये एक बहन से मिली तो इन्हें कितनी खुशी हुई, और अब इन्हें जो लगता है कि इन्हें इनकी एक फैमिली मिल गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगी कि जिनकी फैमिली नहीं है उनकी फैमिली बनिए, हमारी महिलाओं की बात सुनिए, समझिए, और फिर आप सोच सकते हैं कि मैं इससे आगे तो आपको कुछ कहूँगी नहीं, आप खुद ही समझदार हैं। तो आज के लिए पार्वो इसमें इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई महिला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।